Hey all, this is Muskan Rathore and welcome back to my channel The Sake of Medicine. So today's topic is myocardial infarction or what we locally call it as a heart attack. Okay, this is clinically also very important plus in theoretical exam also this is important. Okay, let me just give you a brief about this. वी ऑल नो अबाउट इट राइट. प्राइमरीली ये किस वजह से होता है? इट इज़ बिकॉज जब ब्लड फ्लो हमारे हार्ट को जो ब्लड फ्लो की ज़रूरत पड़ती है जब वो डिक्रीज़ हो जाए या फिर ब्लॉक हो जाए तो इट इज़ द रीज़न फॉर मायोकार्डियल इन्फाक्शन एंड विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल, डोंट वरी. ओके, एंड दिस इज ऑब्जर्व्ड इवन इन फिट पीपल्स ऑल्सो. लाइक recently the unfortunate demise of Siddharth Shukla was because of heart attack, although he was seemingly very fit person. And let me tell you the probable reasons. It is because of the sedentary lifestyle, your lack of regular exercises. It can be because of obesity, hypertension, right? And exercise and healthy food is a key for a healthy body, and it keeps you fit from inside. Okay, so lots of superficial talk. Let's get properly into the topic. Okay, yeah, so first, if you haven't subscribed my channel and still watching my video, please do subscribe my channel. And at last, after watching this video, if you like this, then please give a thumbs up on this video. And yeah, comment down your opinions and let's get started. Okay, so firstly, as I told you, तो ये क्यों होता है? when the blood supply to the heart itself, जब हार्ट का खुद का ब्लड सप्लाई इफ़ इट ब्लॉक्स और डिक्रीजेज समहाउ तो इट कैन कॉज एमआई. बट हाउ डज इट डू दैट? तो जैसे ब्लड फ्लो कम हुआ तो इट कैन कॉज इस्चीमिया या इस्केमिया, वॉट एवर यू प्रोनाउंस, इट्स वन एंड द सेम. ओके, एंड दैट विल कॉज नेक्रोसिस, एंड दैट नेक्रोसिस कैन लीड टू द acute MI. Okay, so the definition is the process of myocardial necrosis resulting from myocardial ischemia is called as acute MI. See, this myocardial infarction या heart attack is a very vast topic. Okay, and we are going to study this in different headings. Okay, and this video will be in two parts. In the first part, that is in this part itself, we are going to talk up to the location of infarct. Okay, so in this video we'll deal with the incidence, its etiopathogenesis, the types of infarct and location of infarct. And in the second part, which will be uploaded very soon, we'll talk about the morphologic features, चेंजेस इन दी अर्ली इन्फार्क्ट डायग्नोसिस एंड कॉम्प्लिकेशंस भी होंगे कुछ, उसके बारे में स्टडी करेंगे. ओके, सो दिस वाज द टॉपिक ओवरव्यू, नॉट इंटरव्यू. सो दिस इज टॉपिक ओवरव्यू एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. Talking about its incidence, acute MI, it accounts for 10 to 25% of all the deaths, and it can occur at all the ages, and about 5% occur in the people under the age of 40 years, in those who have major risk factors to develop atherosclerosis. Atherosclerosis तो पता है ना, plaque formation हो जाता है, that is called as atherosclerosis. And when we talk about the sex preponderance, the male has the higher risk compared to the females. तो अब हम बात करेंगे इटियोपैथोजेनेसिस की. सो विल टॉक अबाउट सम डिफरेंट पॉइंट्स. फर्स्ट ऑफ विल डिस्कस कि मायोकार्डियल इस्चीमिया के क्या रीजंस हो सकते हैं. हमने कहा था कि मायोकार्डियल इस्चीमिया होता है, फिर नेक्रोसिस होता है, एंड दैट विल कॉज एमआई. सो व्हाट आर द रीजंस दैट कैन कॉज मायोकार्डियल इस्चीमिया? यू कैन इमेजिन बाय योरसेल्फ कि कोरोनरी ब्लड फ्लो जो है वो किसी रीज़न से डिक्रीज़ हुआ होगा. देयर मे बी इंक्रीज्ड मायोकार्डियल डिमांड. पता है मायोकार्डियम का डिमांड कैसे इंक्रीज़ हो जाएगा? ऐसे ही ओवरनाइट नहीं होगा, सुबह उठ के हार्ट बोलेगा I need more blood. No, it will not happen like this. बट कैसा होता है, जैसे किसी पर्सन को persistent hypertension हो जाता है, so because of that there will be left ventricular hypertrophy, and that hypertrophy causes increased demand of blood flow to the myocardium of that particular area, and if it isn't sufficient blood flow नहीं पहुंच रहा हो तो that can cause myocardial ischemia, and that will lead to the myocardial infarction. Okay, सो यही पॉइंट है कि हाइपरट्रोफी ऑफ हार्ट विदाउट साइमल्टेनियस इंक्रीज ऑफ द कोरोनरी ब्लड फ्लो. So now we'll talk about the second point, that is the role of platelets. Suppose अगर कोई एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक है किसी आर्टरी में, ओके, एंड इफ़ दैट रप्चर्स, वो रप्चर होने के बाद उस जगह का जो सब एंडोकार्डियल कोलाजन है दैट विल गेट एक्सपोज टू द फ्लोइंग पैरासाइट नहीं ओके प्लेटलेट्स, नॉट पैरासाइट. अभी मैंने पैरासाइट पढ़ा ना, इसलिए मुझे पैरासाइट याद आ रहा है. ओके, सो वहाँ का जो सब एंडोकार्डियल कोलाजन है दैट विल गेट एक्सपोज टू प्लेटलेट्स. नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि व्हाट इज़ दिस सब एंडोकार्डियल space या फिर सब एंडोकार्डियल कोलाजन. सी वी हैव read about endocardium, myocardium, pericardium, but now what is this subendocardium?
ओके, सो लेट मी टेल यू, जो एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम मतलब कि जो इनर टू लेयर्स होती हैं उसके बीच की जो स्पेस होती है ना, हम उसको सब एंडोकार्डियम कहते हैं. ओके, सो द कोलेजन ऑफ दैट सब एंडोकार्डियम विल गेट एक्सपोज टू द प्लेटलेट्स. नाउ द प्लेटलेट्स विल अंडरगो एग्रीगेशन, वहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे. दे विल एक्टिवेट एंड दे विल अंडरगो रिलीज रिएक्शन. सो विच आर द मेन केमिकल्स दैट अ प्लेटलेट रिलीजेस? दैट इज सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन, हिस्टामाइन, थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड मैनी अदर्स. नाउ दे विल नाउ एक प्लेटलेट मास का बिल्डअप हो जाएगा एंड दैट मास में कॉज एम्बोलाई एंड दैट कैन इनिशिएट थ्रोम्बोसिस. एंड इसकी वजह से आगे ब्लड फ्लो नहीं जाएगा, वही बात है, स्टीमिया हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा एंड दैट विल कॉज MI. ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अक्यूट प्लेक रप्चर. वहाँ पर हमने रोल ऑफ प्लेटलेट्स में स्पेसिफिकली हमने कहा था मतलब हमने कहा था कि एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक अगर रप्चर हो जाए, बट हियर वी आर डिस्कसिंग कि अगर कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक रप्चर हो जाए तो क्या कंसिक्वेंसेज होंगे. सो दैट विल कॉज कोरोनरी थ्रोम्बोसिस प्लेक रप्चर की वजह से, दैट एंड प्लेक हेमरेज इज फ्रिक्वेंटली एनकाउंटर्ड. मतलब वही सेम चीज़ होगी बट हियर स्पेसिफिकली इट इज़ मेंशन कि दिस विल अकर इन दी coronary system. Okay, so acute complications in coronary atherosclerotic plaque in the form of superimposed coronary thrombosis due to plaque rupture and plaque hemorrhage is frequently encountered in the case of acute MI. Now these 2 points are necessary. Like, what is superimposed coronary thrombosis? Now see, due to disruption of the plaque, मतलब प्लेक के रप्चर की वजह से ये चीज़ होती है. वी नो एवरीथिंग कि प्लेक का रप्चर हुआ, वहाँ पर प्लेटलेट्स आ गए, प्लेटलेट्स विल एग्रीगेट, दे विल एक्टिवेट एंड दे अंडरगो रिलीज रिएक्शन एंड वहाँ पर प्लेटलेट का मास फॉर्म हो जाएगा. दैट कैन इनिशिएट द एम्बोलाई और दैट कैन कॉज थ्रोम्बाई एंड उसकी वजह से वही ब्लड फ्लो कम होगा, इस्चीमिया होगा, नेक्रोसिस होगा. दैट्स द सेम थिंग. ओके, नाउ अगर हमारे पास कोई पेशेंट है कि वी नो कि हाँ इसको जो है प्लेक है, मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस है इसकी आर्टरी में, एंड देन इफ दैट पेशेंट कम्स विद अक्यूट MI विथ हार्ट अटैक, then you can give an infusion of intracoronary fibrinolysin within half an hour of the development of acute MI, if only you know कि इसको atherosclerosis है इस patient को तभी. Okay, now what do I mean by fibrinolysin? That will cause the lysis of the fibrin. Okay, and that will help in the restoration of the blood flow. Now next is the intramural hemorrhage. What do I mean by intramural? Intra मतलब within, मतलब के अंदर, and mural मतलब wall. So intramural hemorrhage मतलब wall के अंदर का hemorrhage होना, and this occurs in 1/3 cases of acute MI. So we are going to talk about the final point of etiopathogenesis, that is transmural versus subendocardial infarcts. तो ट्रांसम्यूरल मतलब व्हेन ऑल द लेयर्स आर इन्वॉल्व एंड सब एंडोकार्डियम मतलब जो सब एंडोकार्डियल स्पेस इज इन्वॉल्व. ओके, एक इमेज है इसके बाद वाले स्लाइड में. आई टेल यू अबाउट द ट्रांसम्यूरल एंड सब एंडोकार्डियल का डिफरेंस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ डेफिनेशन आई टोल्ड यू फुल थिकनेस इन्वॉल्व होती है एंड इट इज सॉलिड. कौन सा इट इज़ मतलब क्या? ट्रांसम्यूरल. ओके, एंड द सब एंडोकार्डियल इन्वॉल्व्स द इनर थर्ड टू हाफ एंड इट इज पैची इन अपीयरेंस. व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी, ट्रांसम्यूरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर more than 95% of cases and it is subendocardial is less frequent. Okay, now talking about the distribution, so this transmural is distributed in specific areas of coronary supply only and subendocardial जो है that is circumferentially involved. circumferential जो है इस वर्ड को पकड़ के रखना. circumferential मतलब मार्जिन्स के आसपास, मतलब सर्कुलर मार्जिन्स के आसपास वो प्रेजेंट होता है. ओके, इस वर्ड को थोड़ा समझ के रखना, याद रखना, और नेक्स्ट इमेज में जब मैं बताऊंगी ना दोनों का डिफरेंस, तब ये circumferential क्लियर हो जाएगा. ओके, pathogenesis, more than 75% of coronary stenosis for transmural infarct and hypoperfusion of myocardium for the subendocardial infarct. The coronary thrombosis is very common in the transmural infarct while it is rare in the subendocardial infarct. When we talk about the epicarditis, it is very common in the transmural infarct and it is totally absent in the subendocardial infarct. Okay, so in this image you can see the clear difference between transmural and subendocardial. As I said, subendocardial के लिए circumferential को पकड़ के रखना. So you can see कि ventricles के ventricles के circumferentially this thing is involved. Okay, and transmural has involved all the layers. Okay, laminar को अभी के लिए साइड में रख दो, but you know most probably subendocardial को ही laminar कहा जाता है.
we'll talk about the types of infarcts, and we have classified this in 3 different ways according to the anatomic region of the left ventricle involved. अगर सी आपने हार्ट को असली में देखा हो, ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर में देखा ही होगा एनाटॉमी डिसेक्शंस में, सो ऑब्जर्व किया हो तो देर इज़ नो पोस्टीरियर साइड ऑफ द हार्ट. ओके, इन्फीरियर ही होता है एंड इट इज़ लैंटिंग लाइक. पोस्टीरियर साइड की बात करें, राइट, तो उसमें सिर्फ इन्फीरियर साइड होता है, देयर इज़ एक्चुअली नो पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट. ओके, सो उस हार्ट को इमेजिन करना एंड जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल की पोजीशंस है उसको साथ में इमेजिन करना, तो समझ में आ जाएगा कि जो इन्फार्क्ट है उसकी क्या पोजीशन है. ओके, एंटीरियर जो है, ओके, एंटीरियर वॉल में प्रेजेंट होगी. पोस्टीरियर है, एज आई सेड कि एक्चुअली देयर इज़ नो पोस्टीरियर साइड, सो मैंने इसीलिए इन्फीरियर लिखा है, ओके, ब्रैकेट में. सो इन्फीरियर इन वॉल में इन्फार्क्शन हो. इट कैन बी लेटरल, लेटरल इन्फार्क्ट भी हो सकता है. सेप्टल मतलब सेप्टम की वॉल में भी इन्फार्क्ट हो सकता है. सर्कमफेरेंशियल जैसे सब एंडोकार्डियल में था वैसे. ओके, एंटेरोलेटरल मतलब एंटीरियरली प्लस लेटरली, दैट इज एंटेरोलेटरल. पोस्टेरोलेटरली, posteriorly, that is inferolateral what we can say actually, and enteroseptal, that is anteriorly and septally. Okay, now according to the degree of thickness of ventricular wall, it can be transmural and subendocardial. We discussed it in previous slide. Okay, according to the age of the infarct, it can be acute, recent or fresh, that is newly formed infarcts, and the second one is the old, healed or organized, that is the advanced infarcts. Now we'll be talking about the location of infarct. So the left ventricle is mostly involved, and right ventricle is less susceptible because of its thin wall. Right atrium accompanies the infarct of the left ventricle, and left atrium is protected from infarction because it is supplied by oxygenated blood in the left atrial chamber. To understand the location of infarct, you need to know completely about the coronary circulation. Heart का blood supply अच्छे से पता होना चाहिए, and which I hope that you have studied well in the anatomy first year, right? And अगर नहीं भी अच्छे से पढ़ा हो तो it's okay, no worries, because इसके बाद वाली slide में there is a beautiful image which shows the circulation की कौन सी artery जो है कौन सी area को supply कर रही है, and in case अगर उस artery में stenosis होता है तो आगे चल के किस part में myocardial infarction होगा. Okay, so first is we are going to talk about the left anterior डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी. अब जैसे मैं थियोरेटिकल ये बता रही हूँ ना तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, बट जब इसको हम डायग्राम में देखेंगे तब पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी में स्टेनोसिस होता है तो इट विल कॉज एमआई इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, इंक्लूडिंग द उसका एपेक्स और उसका आईवी सेप्टम मतलब इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का 2/3 पार्ट. एंड दिस इज द मोस्ट कॉमनेस्ट वन, दैट इज 40 to 50% केसेज आर बिकॉज ऑफ लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी stenosis. Okay, now next is the stenosis of right coronary artery. This is occurring in 30 to 40% of cases, and it causes MI in the posterior part of the left ventricle and posterior 1/3 of the IV septum. Okay, then is the stenosis of left circumflex coronary artery, and this is the very rarest form. 15 to 20% occurs because of this, and it occurs in the lateral wall of the left ventricle. In the first image you can see जो one mark किया हुआ है that is the left anterior descending coronary artery, and you can see ये किस किस को सप्लाई कर रहा है. तो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल का जो एंटीरियर पार्ट है उसको सप्लाई कर रहा है, थोड़ा सा एपेक्स है, और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का एंटीरियर 2/3 पार्ट. ओके, नाउ सेकेंड वन जो है ग्रीन में दैट इज़ राइट कोरोनरी आर्टरी. वो किस किस को सप्लाई कर रहा है, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के पोस्टीरियर पार्ट को कर रहा है और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के पोस्टीरियर 1/3 को कर रहा है. ओके, एंड ये जो थर्ड वन है दैट इज़ लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी, एंड दैट इज सप्लाइंग द लैटरल वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, एज यू कैन सी, राइट, ये पूरा विजिबल है ही. तो अब देखो जो नेक्स्ट बी इमेज है, इसमें पहले एनाटॉमिक जो उसका ओरिएंटेशन है वो दिया हुआ है. स्क्रीन की साइड मतलब टूवर्ड्स योर साइड इट इज़ द एंटीरियर वन एंड द अपोजिट साइड इज़ द पोस्टीरियर वन. राइट एंड लेफ्ट समझ में आ गया. नाउ द मोस्ट कॉमनेस्ट वन दैट इज़ लेफ्ट को. अब ये है क्या, ये कट सेक्शन है हार्ट का. ओके, एंड ट्रांसफर सेक्शन व्हाट वी कैन से प्रिसाइसली. जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी है, मैंने कहा था कि वो लेफ्ट वेंट्रिकल के एंटीरियर पार्ट को, तो मैंने क्या कहा, स्क्रीन के साइड क्या है जो आपकी तरफ है दैट इज़ एंटीरियर पार्ट. ओके, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के एंटीरियर पार्ट को उसने सप्लाई किया है, सो वहाँ पर इन्फाक्शन हुआ, एपेक्स पर होगा, एंड जो आईवी सेप्टम है उसका एंटीरियर 2/3 पार्ट, यू सी हाफ नहीं है लेकिन हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व है, एंड थोड़ा सा पार्ट जो है वो इंटरमीडिएट जो लिखा हुआ है ना दैट इज़ बिकॉज ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी. ओके, अब हम राइट कोरोनरी की पर्टिकुलरली बात करते हैं. जैसा मैंने आईवी सेप्टम का बता दिया, पोस्टीरियर 1/3, ओके, एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल. नाउ द वेरी लेस कॉमन, नॉट कॉमनेस्ट, द वेरी रेयरेस्ट फॉर्म इज दिस वन दैट इज़ बिकॉज ऑफ लेफ्ट
left circumflex coronary artery, and this supplies the lateral wall of left ventricle. Okay, so ये पूरा orientation और जो भी इसका location regions है वो सब समझ में आ गया. Okay, so here I end our today's video here, because as I said कि इस video में will talk only and only about the about up to the location of the infarct. Okay, in next part we will be talking about the morphologic features, which is the very important part of MI in pathology, and then is the diagnosis. Some complications are there. Okay, और उसके बाद अपना हार्ट अटैक ख़त्म हो जाएगा, एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट RHD इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट. मतलब इसके बाद तो आएगा इसका सेकेंड पार्ट, एंड वो ख़त्म होने के बाद वी विल बी टॉकिंग अबाउट द RHD. एंड या अगर वीडियो देखी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, लाइक कर देना, एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर बैचमेट्स एंड फ्रेंड्स. एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग.